Student, this is the class 9 subject social science, and this is chapter 2nd of geography, and the topic is physical features of India, and this is the lecture 1. Student, this chapter we will cover in 7 to 8 lecture. And student, before starting the lecture, firstly we will recall previous chapter, and in previous chapter we have studied about India's size and location. India is located in northern hemisphere. Total area of India is 3.28 million square kilometer, and its land boundary area is 15,200 kilometer also. And student, this chapter name is physical features of India, and this is very important chapter. And student, in this chapter we will learn about major physical features of India and how they have been formed. Student, we have seen different physical features such as mountain, desert, rivers, plateau, island, coastal area, etc. And student, physical features of India are very important for us because it provided us first minerals, soil, water, forest, etc. So student, let's start our lecture, and today we will discuss first introduction of this chapter, second tectonic plates, third types of plates, and last formation of Himalaya. Student, you know, India is a vast country with different landforms. Such some people live in uh, northern plains, some people live in mountain and hilly areas also, and see people, and we find different types of rocks. Some are very hard and some are very soft. And student, in our country we have major physical divisions such as Himalayan mountain. We will read in this chapter such as Himalayan mountain, second northern plain, peninsular plateau, Indian desert, coastal plain, and the island. As a student, because physical features of India are very important for Indian economy, because it provided us minerals, water, soil, forest, etc. And tectonic plates, with the help of tectonic plates, scientists have explained explained the formation of physical features of India, and next types of plates, and next formation of Himalayas. And first, introduction. Student, India is a vast country and with different landmass, and India is a India is a planet, and India and the uppermost layer of the earth surface is called crust, and the innermost layer of the earth called is core, and the middle layer of the earth is called mantle. And the student, earth crust is made of various types of rock. And student, rocks can be different color, size, and texture. And rock means any natural mass of minerals matters that makes up the earth crust. And we have three types of rocks: igneous rock, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. First, student, when the you know when the red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface, and when it's cooled down and became solid, then igneous rocks are formed. Example, basalt. And Deccan Plateau. Deccan Plateau is made of basalt rock. And sedimentary rocks, when rocks roll down, crack, and heat each other and were broken down into small fragments, and these small particles are called sediments. And these sediments are transported and deposited by wind and water. And metamorphic, student, metamorphic, when igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic under great heat and pressures. Example, clay changes into slate and limestone. And student, rocks are very important for us because the hard rocks are used
for making roads, building houses, and Taj Mahal also. And some are very soft like soap stone, and which is used to making talcum powder. And the color of soil varies from one place to another because soil is formed of out of different types of rocks. स्टूडेंट, जो हमारा अपर लेयर है यानी क्रस्ट है, जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ है उसको कहते हैं क्रस्ट. क्रस्ट वो रॉक से बना हुआ है. जो रॉक्स 3 टाइप्स की होती हैं आपको पता है. क्रस्ट के अंदर क्या है, मेंटल, और मेंटल के अंदर क्या है, कोर, और मेंटल के अंदर क्या है, मैग्मा होता है. और जो मैग्मा क्या होता है, हीट और प्रेशर की वजह से बाहर आता है, और बाहर आने के ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाती है, रॉक्स बन जाती है. 3 टाइप्स की रॉक बनती है, इग्नेस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फ. इग्नेस में क्या होती हैं, रॉक्स जब मैग्मा ठंडा होता है रॉक्स बन जाती हैं, और जब रॉक्स जब क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री. और मेटामॉर्फिक जब क्या होती है, जब प्रेशर और हीट की वजह से उसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक. जैसे कि क्ले चेंजिंग इनटू स्लेट. एंड द रॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं हमारे लिए, क्योंकि जो रॉक्स होती हैं उसकी वजह से हम क्या बना सकते हैं, बिल्डिंग बनाने में, जैसे ताजमहल बनाने में संगमरमर का यूज़ किया है. कुछ रॉक्स हार्ड्स होती हैं, कुछ क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं. और रॉक्स की वजह से जो सॉइल होती हैं वो भी क्या होती हैं, डिफरेंट रूप में पाई जाती हैं. जैसे कि अपने इंडिया में 6 टाइप्स ऑफ सॉइल पाई जाती हैं. जैसे कुछ रेड होती हैं, कुछ ब्लैक होती हैं. ओके, तो ये जो है, जो सॉइल की जो वैरायटी है वो भी हमारे रॉक्स के फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है. And next, factor responsible for modifying relief. And the student, India is a large landmass formed during different geological period and which has influenced her relief. जो आपके फिजिकल फीचर्स हैं वो क्या है, एक तो आपके नेचुरली होते हैं, जो आपके क्या होते हैं उसको बनने में क्या है, जियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, जिनको बनने में वैसे ही कई लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं. वो अपने आप ही क्या होता है, जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ही बनते हैं. और कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं रिलीफ को, जैसे कि वेदरिंग, सेकंड इरोजन, थर्ड डिपोजिशन, एंड नेक्स्ट अर्थक्वेक. एंड द स्टूडेंट, डिपोजिशन, इट इज द प्रोसेस वेयर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. एंड द इरोजन, इट इज द प्रोसेस इन विच ईस्टर्न मटेरियल आर ट्रांसपोर्ट बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड, वाटर. And deposition, it is the processing in which sediment, soil and rocks added to landmass. And the student, this process of erosion and deposition create different landmarks on the surface of the earth, such as Mender, Oxbow Lake, and the Rift Valley, etc. And the earthquake, the lithosphere plates move around very slowly and just a few millimeter each year because of the movement of molten magma inside the earth, and the molten magma inside the earth move in the circular manner. And when the lithosphere plates move, the surface of the earth vibrates, and the vibrates can travel around the earth is called vibration and is called earthquake. Student, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो फिजिकल फीचर्स को क्या करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं. जैसे कि वेदरिंग्स में क्या होता है, इसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी रॉक्स क्या होती हैं, टूट जाती हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग. इरोजन क्या होता है, जब पानी और हवा की वजह से जो टुकड़े हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको बोलते हैं इरोजन, यानी उस जगह को खाली करके या उस जगह को कम करके दूसरी जगह चले जाते हैं. डिपोजिशन, जब वो जो सारे जो पार्ट्स हैं, सेडिमेंट्स हैं, जो वहाँ जाके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ जाके एक नए लैंड मास को बनाते हैं, उसको बोलते हैं डिपोजिशन. और अर्थक्वेक कैसे आता है, आपको पता है कि आपकी जो लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, मूवमेंट्स होती हैं. ज़मीन के अंदर क्या है, मैग्मा होता है, और मैग्मा के ऊपर प्लेट्स होती हैं. मैग्मा नीचे होने की वजह से प्लेट्स लगातार मूवमेंट करती रहती है, और मूवमेंट करते हुए उनमें कई बार क्या होता है, वाइब्रेंट्स आ जाता है, और वाइब्रेंट्स आने की वजह से उस धरती में क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है, उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक. तो ये जो सारे फैक्टर है वो क्या करते हैं, फिजिकल फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन एंड अर्थक्वेक. एंड द स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. एंड द स्टूडेंट, द अर्थ साइंटिस्ट have attempted to explain the formation of physical feature with the help of some theories based on certain evidence. And first theory is theory of tectonic plates.
theory of tectonic plates, according to this theory, the crust of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. स्टूडेंट, जो क्रस्ट है, जो जमीन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, वो क्या है, अलग अलग प्लेट से बना है. उसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ छोटी प्लेट्स हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बना है, क्रस्ट बना है. क्रस्ट के नीचे हमेशा क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं, जो आपस में क्या करती, मूव करती रहती है. और प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्लोटिंग ऑन मैग्मा. स्टूडेंट, यू नो द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर. जो मैग्मा होता है वो क्या होता है, लगातार मूवमेंट करता रहता है. और जो प्लेट्स हैं वो मैग्मा के ऊपर क्या लगातार क्या करती है, फ्लोटिंग करती रहती है, यानी कि उस पर मूव करती रहती हैं. और इसी वजह से हमारे जो क्या होती है, वाइब्रेशन होता है, और उसके क्या होता है, वोल्केनोज भी होते हैं. क्योंकि लगातार हीट और प्रेशर की वजह से कई बार क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो हमारे ज़मीन के अंदर मैग्मा है वो क्या होता है, बाहर निकल, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्केनोज. And 7 major tectonic plates are Pacific plate. First is Pacific plate. Second, North American plate. Third, the South American plates. Fourth, Eurasian plate. Fifth, African plate. Sixth, Indo-Australian plate. And 7, the Antarctica. So students, these are some major tectonic plates. With the help of some 7 major tectonic plates and some minor plates formed crust. And student, here we see, here is Indo-Australian plate, African plate, and you know we have 7 continents in the world, Eurasian plate and South American plate, North American, Eurasian, Pacific plate. Here is Antarctica. Okay, and these are 7 major plates. And types of plates movements. First is convergent boundary, called convergent boundary. Second, divergent boundary. And third, transform boundary. Convergent boundary, when while some plates come towards each other and form convergent boundaries, example formation of mountains. And second, it may also called folding moments. Folding moments, when student, when some plates, जब 2 प्लेट्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, मिल जाती हैं, एक दूसरे को टकराती हैं, तो क्या बनता है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनती. कन्वर्जेंट, जब आपस में आप मान लो आप कोई भी 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हो, तो जब वो कनेक्ट पॉइंट होता है तो वहाँ पे एक शेप बन जाती है, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री. यानी कि वो जो शेप है उसमें वी शेप बन जाता है या यू शेप बन जाता है, उसकी वजह से हमारे माउंटेन बनते. एग्जाम्पल, कन्वर्जेंट बाउंड्री की वजह से हमारे माउंटेन बनते, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. और इसीलिए इसको कहते हैं, इट मे आल्सो कॉल्ड फोल्डिंग माउंटेन. आप देखना, कोई भी 2, अगर आप बुक्स लेते हो या आप कोई भी 2 क्लॉथ लेते हो, आप उसको अगर जोड़ते हो तो बीच में से वो आपस में मिलते हैं, तो क्या होती हैं, वहाँ जहाँ इनका मीटिंग पॉइंट होता है वहाँ पे वो क्या करते हैं, उस शेप में थोड़ी चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है माउंटेन. तो उस शेप से हमारे क्या बनते हैं, माउंटेन. और जब बनते हैं, जब 2 प्लेट्स आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे से मिल रही होती हैं, तो उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. इज आल्सो कॉल्ड फोल्डिंग माउंटेन. फोल्ड हो जाते हैं, जैसे कि फोल्ड ऑन, एक दूसरे के अंदर फोल्ड हो जाना, फोल्डिंग माउंटेन. डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट other means it names is dividation, as such as some plates move away from each other. Example, formation of rift valley. And it is also called faulting movement. Student, जब 2 डिफरेंट प्लेट्स हैं और वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से अलग हो रही हैं, यानी मूव कर रही हैं. जब एक प्लेट्स हैं आपस में क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं, एक दूसरे से अगेंस्ट जा रही हैं, एक लेफ्ट एक राइट साइड जा रही है, तो जब वो दूर जाती हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस हो जाता है. उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फॉल्टिंग मूवमेंट्स. इसको बोलते हैं फॉल्टिंग. जब यानी जब हमारे रॉक्स में क्रैक आ जाता है या टूट जाती हैं, और टूट जाने की वजह से वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं, तो डिफरेंस की वजह से वहाँ पे क्या बनते हैं, रिफ्ट वैली बनते हैं, यानी कि वैलीज बनते हैं और बहुत गहरे होते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली, और वो बनते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री की वजह से. ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, 2 plates coming together, they may either collide and crumble, and it may slide under the other. Plates may move horizontally, and earthquake and volcano also. Student,
ट्रांसपोर्ट बाउंड्री व्हेन टू प्लेट्स कमिंग टुगेदर, व्हेन जब दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं, और मिलती हैं तो कई बार क्या होती हैं, उनका जो मिलती हैं टकराती हैं और क्या हो जाती है, आपस में टूट जाती है। और जो मिलने की वजह से जो प्लेट्स हैं, जो स्लाइड्स हैं, वो एक दूसरे के अंदर भी चली जाती हैं। और जो प्लेट्स हैं वो क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, दोनों क्या करती हैं, हॉरिजॉन्टल शेप में आपस में क्या करती हैं, मूव करती हैं। और इसी की वजह से हमारे क्या आते हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनोज आते हैं। ओके, तो आपने पढ़ा स्टूडेंट कि यहाँ पे 3 मोमेंट्स होते हैं, 3 बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, जिसकी की वजह से हमारे फिजिकल फॉर्मेशन में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। जैसे फर्स्ट आपने पढ़ा कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब क्या होती है, जब दो प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो जिस पॉइंट से मिलती हैं वहाँ पे एक अलग शेप बन जाती है, उसकी वजह से हमारे क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। डाइवर्जेंट में जब क्या होती है, रॉक्स टूट जाती हैं या रॉक्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही है तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, और वहाँ पे हमारे बनते हैं रिफ्ट वैली। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जब आपस में ना टकराती हैं बल्कि क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं और स्लाइड एक दूसरे के अंदर चली जाती हैं, जिसमें क्या होती है, मिलती हैं तो वो टूटती हैं, टकराती हैं, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, अर्थक्वेक और क्या होते हैं, वोल्केनोज होते हैं। और आपको पता है ज़्यादा लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव, और जो लिथोस्फीयर लगातार मूव करते रहते हैं, और मूव करने की वजह से धरती के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन आने से इसके अर्थक्वेक आते हैं। और वॉल्केनो भी आपको पता है कि मोल्टन मैग्मा इरिप्स सडनली, जब जमीन के अंदर से हीट और प्रेशर की वजह से एकदम आपका मैग्मा बाहर आता है, उसको बोलते हैं वॉल्केनो। तो ये इस वजह से हमारी प्लेट मूवमेंट्स होती हैं। इफेक्ट्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ कंटिनेंट ओवर ईयर। स्टूडेंट, effect of plates movement, it changes the position and size of the continent over year. And student, these plates move around very slowly, just a few millimeter each year, and this is because of movement of the molten magma inside the earth. And plates movements influence the present landform of the features relief of India, and it influences the present landform of and feature relief of India. स्टूडेंट, प्लेट मूवमेंट्स होने की वजह से एक तो कंटिनेंट की पोजीशन साइज में चेंज होता है, लेकिन जो ये चेंज जो होता है वो कई सालों में होता है, क्योंकि कुछ ही एक ईयर में कुछ ही मिलीमीटर चेंज होता है, और उसी की वजह से हमारे लैंडफॉर्म फीचर रिलीफ में भी क्या होता है, चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय, Gondwana is the southernmost part of the ancient supercontinent Pangaea, with Angara land in the northern part. Student, before many years, supercontinent name was Pangaea, and the Pangaea का पार्ट था, कौन सा था, गोंडवाना। कंटिनेंट पेंजिया था, उसका जो पार्ट था गोंडवाना, वो था सर्दर्न मोस्ट पार्ट में, और जो अंगारा लैंड था वो था नॉर्दर्न पार्ट में। यानी जो पेंजिया था, जो कंटिनेंट था, उसके सर्दर्न पास में था गोंडवाना, और जो नॉर्थ पार्ट में था उसको बोलते थे अंगारा लैंड। एंड गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन लैंड मास। और उसी की वहाँ पे जो गोंडवाना लैंड था उसमें क्या क्या इंक्लूडेड थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका एज वन लैंड मास। एंड all these countries included in Gondwana land. But the conventional currents split the crust into pieces of number of pieces, thus leading to drifting of Indo-Australian plate after being separated from the Gondwana land towards north. And the student, convection currents mean it is a process of heat transfer through a gas or liquid or by bulky motion of hotter material into cooler region. कन्वेंशन करंट्स मीन्स क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, बहुत ही गर्म और क्या होती हैं, गर्म हवा या गैस और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जो क्या करती है, बहुत गर्म जगह से ठंडे जगह पे जा रहे होते हैं, और ज़मीन के अंदर कन्वेंशनल करंट आने की वजह से जो क्रस्ट है वो क्या हो गया, अलग अलग पीसेस में क्या होगा, डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने की वजह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना, वो गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गई।
क्रस्ट में जब हमारे अंदर क्या होता है, करंट आने की वजह से क्रस्ट के अलग अलग पार्ट्स हो गए, और पार्ट्स होने की वजह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो क्या हो गई, गोंडवाना लैंड से अलग हो गई, और गोंडवाना अलग से होने के बाद वो नॉर्थ साइड की तरफ मूव कर गई। ओके, एंड हियर देखिए, इधर देखिए बेटा, इधर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और इधर ये क्या है, गोंडवाना लैंड था। इधर ये नीचे वाला साउदर्न पार्ट गोंडवाना लैंड है, और यहाँ पार्ट होने के बाद ये बाद में क्या हो गया, यहाँ से कन्वेंशन करंट आने के बाद जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इंडिया और ये क्या, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की आपस में प्लेट आपस में क्या कनेक्टेड है, इसलिए इसको कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यहाँ से ये मूव करने के बाद ये कहाँ चले गए, आगे की तरफ चले गए, यानी कि यूरोशियन यहाँ गए, ये नॉर्थ के साइड मूव गए, और नॉर्थ के साइड जब भी गए तो वहाँ पे थी यूरेशियन प्लेट, और यूरेशियन प्लेट इससे बहुत ज़्यादा क्या थी, लार्जर थी। और जब ये आपस में मिले तो उनके बीच में एक था टेथिस सी था, क्या था, टेथिस सी था। और यहाँ मिलने के बाद और आपस में यहाँ पे क्या हुई, जो सेंडिमेंट्री रॉक्स थी वो क्या हो गई, वहाँ पे जो कन्वर्ट होके जो सी था, जो वहाँ पे फोल्डिंग होने की, यानी फोल्डिंग मूवमेंट होने की वजह से, यानी जो सी था उसमें क्या मूवमेंट, जब दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं, कन्वर्जेंट होती है, तो वहाँ पे फोल्डिंग मूवमेंट्स होती हैं। तो जो सी था वो किसकी उसमें शेप में आ गया, माउंटेन की शेप में आ गया, इसलिए इसको कहा जाता है हिमालय। वहाँ पे क्या बने, हिमालय। देखिए, द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिशन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। और वहाँ नॉर्थ पार्ट से हटने के बाद जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो किसके साथ उसको टकराई, यूरेशियन प्लेट के साथ। जो यूरेशियन प्लेट थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, उससे लार्जर थी, काफ़ी बड़ी थी। और टकराने के बाद ड्यू टू दिस कॉलिशन द सेडिमेंट्री रॉक्स, वहाँ कौन सी रॉक थी, सेडिमेंट्री रॉक्स, विच वर अक्यूमुलेटेड इन द जियोसिक्लोन नॉन एज द टिथिस। और वहाँ पे जो सेंडिमेंट थी वो क्या हुई, इकट्ठी हो गई, टेथिस सी वर फोल्डेड। और जो वहाँ पे टेथिस सी था वहाँ पे जो थी, वहाँ पे क्या हो गया, फोल्ड हो गई, फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशियन हिमालय। उसको क्या नाम दिया गया, हिमालय का नाम दिया गया। यानी स्टूडेंट देखिए बेटा, जब आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गोंडवाना लैंड से अलग हुई तो वो कहाँ गई, नॉर्थ की साइड मूव कर, नॉर्थ साइड वहाँ गई, तो वहाँ पे उससे ज़्यादा बड़ी क्या थी, यूरेशियन प्लेट और जब आपस में टकराए तो उनके बीच में टेथिस सी था। टेथिस सी वहाँ पे सेंडिमेंट्री रॉक्स थी, और सेंडिमेंट्री रॉक्स वहाँ पे जियोसाइकिल, यानी कि उसके वो निचली सतह, यानी कि जो निचला पार्ट था वहाँ पे फोल्डिंग मूवमेंट होने की वजह से वो काफ़ी धसी हुई थी, और मूवमेंट होने की वजह से नीचे धसा हुआ पार्ट वो कहाँ गया, ऊपर की तरफ चला गया, यानी कि उसकी वी शेप बन गई, और वी शेप बनने की वजह से वो माउंटेन बन गई। उस माउंटेन को कहा जाता है हिमालय। एंड द ग्रेट वेरिएशन इन द लैंड ऑफ इंडिया and the Himalaya and the northern plain are the most recent landform। स्टूडेंट, जो हिमालय नॉर्दर्न प्लेन है वो क्या है, अभी बना हुआ लैंडफॉर्म, अभी मतलब कि अभी 500 या 800 साल ही पुराने बना हुआ हिमालय, यानी काफ़ी करोड़ों साल पहले नहीं हिमालय नहीं बने थे। एंड द हिमालय रिप्रेजेंटेड ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक, डीप वैली एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। इन हिमालय we have seen different peaks such as mountain peak, K2, and deep valleys and fast flowing rivers such as Indus, Ganga, okay, and the northern plain are formed of alluvial soil। और वहीं पे हिमालय बनने के बाद ही क्या बना, आपका नॉर्दर्न प्लेन बना। नॉर्दर्न प्लेन किससे बना है, एलुवियल सॉइल से बना। नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म, स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। हिमालय बनने के बाद क्या बने, लार्ज बेसिन बने, यानी काफ़ी उसमें क्या बनी, गहराई बनी, हिमालयस बने आपस में, लार्ज बेसिन बने। एंड ड्यू टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड। और ज़्यादा हिमालय बनने के बाद, ज़्यादा वहाँ पे क्या है, लार्ज बड़े बड़े बेसिन बनने के बाद, और वहाँ पे क्या होगी, जो वहाँ पे जो नदियाँ जो फ्लो करती थी अपने साथ बहुत, जब माउंटेन इन द नॉर्थ, और जो नदियाँ जब माउंटेन से नॉर्थ की साइड आती थी तो अपने साथ बहुत सारे सेंडिमेंट्स लेके आती थी, जैसे कि सैंड, सिल्ट अपने साथ लेके आने की वजह से वहाँ पे वो क्या करती, इकट्ठे हो जाता था। एंड इकट्ठे होने की वजह से जब माउंटेन से जब वो क्या है, एक मिट्टी इकट्ठी होती तो वहाँ पे एक एरिया बन गया, उस एरिया को बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। एंड ए फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलोवियल डिपॉजिट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और उसी माउंटेन के बाद ही हमारा क्या एरिया बना, नॉर्दर्न प्लेन बना। नॉर्दर्न जो प्लेन एरिया वो क्या, फ्लैट लैंड है, और किससे बना है, जो माउंटेन से जो नदियाँ आती हैं, नदियों के में जो आपके
जो आपके सोइल है, सैंड है, सिल्ट है, वो सारी इकट्ठी होती थी। इकट्ठी होने के वहाँ पे कौन सा बना, नॉर्दर्न प्लेन। इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन एरिया आर वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो फर्टाइल है, क्योंकि नदियों से जो मिट्टी आती है वो क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है, और वो वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन में इकट्ठी हो जाने की वजह से नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया काफ़ी फर्टाइल, जैसे कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, और यहाँ पे एग्रीकल्चर भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। Okay, student. And today your homework, what are tectonic plates? Which factor modified the relief features of India? And question number 3, what are 3 types of plate movement on the earth? Student, all question done in your fair notebook. Thank you.